Hello everyone, I hope you are doing well. As you would be knowing that on 13th of October, the IFSCA Grade A Phase 2 exam happened. Now I think it's been 5 days and the dust has settled enough. So I think it's high time that we can talk about the difficulty level of the exam, and we can also expect some kind of cutoff with respect to the exam analysis. Fine. So without wasting any time, let us begin with the discussion. So as you would be knowing that this phase 2 consists of two type of papers, paper 1 and paper 2. Paper 1 consists of the English part. So firstly, let us talk about this English part only. And in this English part, the first question that they gave was with respect to the essay writing, where they gave you three choices. And in तीन choices में से आपको कोई एक choice attempt करनी थी. So the first choice was regarding government should consider preparing rules so as to regulate the content being broadcasted over various online video streaming channels. So if you are aware about the news and all those things, so basically the context of this essay was with respect to the draft regulations with respect to the OTT प्लेटफॉर्म्स. तो ये काफी न्यूज में था एंड उसी कंटेक्स्ट को यूज करके क्वेश्चन फ्रेम किया है. एंड लेट मी आल्सो टेल यू दैट कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है जिनसे हमने कांटेक्ट किया, हमारी टीम ने बात की, तो उन्होंने यही बताया कि उन्होंने इसी चॉइस को अटेम्प्ट किया है primarily because this was, I would say, easier to attempt. आप इसमें काफी कंटेंट लिख सकते थे even with the help of logic. Fine. So this is the first choice. The second choice is with respect to the buying behavior of Indian customers have changed significantly. Discuss the positives and negatives. So basically there were many articles with respect to this topic also in the newspapers, especially after the post pandemic period, जहां पर देखा था कि जैसे जैसे डिजिटाइजेशन इंप्रूव होती जा रही है तो उसी तरह लोगों का जो कंजम्पशन पैटर्न्स है विद रिस्पेक्ट टू एक्सेसिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो भी कहीं ना कहीं चेंज होता जा रहा है. तो बस उसी कंटेक्स्ट को यूज करके ये टॉपिक फ्रेम किया गया था. The third topic was very much static with respect to the social issues related to role of family dynamics in providing mental well-being across generation. So these were the three choices that were given to you, and मैंने जैसा कि बताया most of the students ने इस choice को attempt किया. And you can also write in the comment box कि आपने इसमें से कौन सा essay attempt किया, and that is it about the essay writing. Fine. So I hope it is useful for you. Now let us move on to the next part. The next part is the precis writing. अब precis writing में आपको precis लिखनी related to trust and ethics in workplace. Again, I won't say if it is a difficult topic, very easy topic, and आप इस पे बात कर सकते हैं अगर आपने practice की है with respect to precis writing. Very much easy to answer. Fine. The next is regarding the comprehension passage, which was of 35 marks. So again, passage, it all depends on your practice, your comprehension skills, and I hope कि आप सबने ये question तो अच्छे से attempt किया ही होगा. नाउ दिस इज रिगार्डिंग द इंग्लिश पेपर, और मैं नहीं कहूंगा कि इंग्लिश पेपर की बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर था. कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सबने किया ही होगा ऑलमोस्ट, प्रेसिस राइटिंग भी सबने कर ही ली होगी. एंड अगर हम एसए की बात करें तो एसए भी अगर आप फर्स्ट एसए को अटेम्प्ट करके आए तो कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी रॉकेट साइंस पूछ ली हो. इट वॉज वेरी मच डूएबल. फाइन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पेपर 2. So if you talk about the paper 2, तो paper 2 को जहां तक हमने एनालाइज किया है, so these are the questions that I pasted on the screen that were asked as a part of the paper 2. अगर आप कुछ क्वेश्चन देखें तो कुछ क्वेश्चन बहुत इजी पूछे थे, जैसे बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है that SEBI does not regulate which of the following, so answer were primary dealers. Then few questions from the insurance were also easy. I would say इंश्योरेंस में कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आए थे, बट ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चन इजी भी थे. तो अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 18 से 20 क्वेश्चन तो 50 क्वेश्चन में से ऐसे थे जो इजीली किए जा सकते थे. अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है जिसने जेन्युइनली स्टडी किया इस एग्जाम के लिए, तो 18 से 20 क्वेश्चन नो डाउट आप किसी भी हालत में कर सकते थे. फाइन. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम इंश्योरेंस सब्जेक्ट की बात करें तो हाँ, कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ज्यादा फैक्चुअल थे, आपसे कुछ परसेंटेज पूछ ली थी या कोई ऐसा नंबर पूछ लिया था जो थोड़ा आंसर करना डिफिकल्ट होता है. फाइन. लेकिन 18 to 20 क्वेश्चंस वर वेरी मच इजी. अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन से दैट 13 to 15 क्वेश्चंस वर ऑफ मीडियम कैटेगरी. फाइन. तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जो अगर आपने थोड़ा एक्स्ट्रा पुश दिया है, अगर आपने सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा इन डेप्थ में पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से 10 क्वेश्चंस और वर डिफिकल्ट एंड 5 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे जो बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे. फाइन. सो दीज आर द सब कैटेगराइजेशन दैट आई ट्राई टू मेक विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड. सो रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस आई हैव पेस्टेड ऑन द स्क्रीन. सो दीज आर द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस. आफ्टर दैट फ्यू अदर क्वेश्चंस आल्सो, जैसे कि देखो द न्यू नेम ऑफ द एसजीएस निफ्टी इज. सो जिसने भी थोड़ा सा मतलब
न्यूज़पेपर्स फॉलो किए हैं, थोड़ा डिसेंटली पढ़ाई की है इन सब्जेक्ट्स को लेकर, प्रीवियस क्वेश्चंस को देखा है, तो ये सब टॉपिक्स आपके प्रिपेयर होने ही चाहिए थे। अगर मैं फाइनेंस एंड बैंकिंग की बात करूं, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड, तो जो क्वेश्चंस आए थे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वर नॉट डीप एट ऑल। फाइन, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए थे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। देखो एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछ लिया था, शेड्यूल्ड बैंक्स आर लिस्टेड अंडर विच शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट? वी ऑल नो दैट इट इज अंडर सेकंड शेड्यूल। फाइन, तो कुछ क्वेश्चंस मैं बोलूंगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन से बहुत ईजी आए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज जो हमने ऑब्जर्व की वो ये है कि आईएफएससीए सर्कुलर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आया था एग्जाम में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर्कुलर को नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए स्किप कर दोगे, उसको बिल्कुल फोकस नहीं करोगे, बिकॉज जरूरी नहीं है कि यही पैटर्न नेक्स्ट ईयर में रिपीट हो। सो फ्रॉम योर साइड यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। बट इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आया था। एक क्वेश्चन आया था आईएफएससीए एक्ट से रिलेटेड, तो जहां पर उनके नंबर ऑफ मेंबर्स पूछ लिए थे, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये। दैट वाज समथिंग आस्क्ड एज अ पार्ट ऑफ पेपर 2। तो मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 35 टू 36 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कहीं ना कहीं आप कर ही सकते थे। मतलब चाहे मैं उसको इजी कैटेगरी में डालूं या मीडियम कैटेगरी में डालूं, दे वर डूएबल। फाइन, और मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट से बात की जो भी हमारे साथ कांटेक्ट में है, एंड उन्होंने यही बताया कि अराउंड 35 से 40 क्वेश्चन तो वो करके ही आए हैं। फाइन, तो ऑन एन एवरेज सबने इतने क्वेश्चन किए ही होंगे, इतने क्वेश्चन डूएबल थे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और ये क्वेश्चंस मैं सारे के सारे नहीं यहाँ पर बोलूंगा बिकॉज उसका फायदा नहीं है। आप ये इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन गो थ्रू दिस क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट पेंशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे, ऑफकोर्स, फॉर एग्जाम्पल द नेशनल पेंशन स्कीम, देन Atal Pension Yojana, all such type of things were asked as a part of this paper 2. So if I open this slide here, you can see that around 15 questions were asked from the banking, capital market and bullion. Then regarding IFSC and gift city, 5 questions were asked. Insurance and pension, around 22 questions were asked in this part. Then few questions were asked from the budget and economic survey also. For example, this question was asked from the economic survey, very specifically that what is the rank of India in terms of market cap to GDP. The rank is 5. Fine. So the 5th rank was there, and this data, this information was mentioned as a part of the economic survey. Similarly, budget से भी एक आधी scheme पूछ ली थी. So these documents you can say are still relevant for this paper. Fine. Now, if I move on to the next part, I hope it is clear to you. You can go through this table regarding the budget. Then few questions were miscellaneous type, current affair based question. This was the sectional weightage with respect to this phase 2. Fine. Now lastly the expected cutoff. जो expected cutoff हमें जनरल कैटेगरी के लिए लगता है, because how we calculated this cutoff, how we came to conclusion by contacting different students कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, स्टूडेंट से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो सिमिलरली other such parameters, by considering other such parameters, we have come to the conclusion that we think that the cutoff would be around within the range of 60, you can say 55 to 62. Fine, so plus minus 2. So इस रेंज में कट ऑफ हो सकता है। अगर आपके मार्क्स यहाँ तक आ रहे हैं, इवन मैं बोलूंगा कि आपके अगर आपको लगता है कि 50 की रेंज में भी अगर आपके मार्क्स हैं, then you should feel confident about your preparation. Fine, so that is the idea. So I hope it is clear to one, and that is it from our side. And if this session was helpful for you, you can write in the comment box. You can also talk about that, how was your experience with respect to this exam. Fine, so thank you so much and all the best.